Hello students, let's continue our chapter thermodynamics, and today we are going to discuss about the adiabatic process, equation for adiabatic process and work done during the adiabatic process. So adiabatic process is a thermodynamical process, and in this process pressure, volume, temperature all are variable, but there is no exchange of heat from the surroundings. Okay, no exchange of heat means neither the heat can enter the system nor the heat can go out from the system. Okay, so adiabatic process is the that thermodynamical process in which there is no exchange of heat, but pressure, volume, temperature is variable. Okay, so let us derive the equation for the adiabatic process. Okay, so suppose we have a cylinder and a piston is kept over it, and this cylinder is enclosing a gas. Suppose walls of this cylinder are adiabatic. Suppose, so if the walls of cylinder are adiabatic, then there is no exchange of heat. Suppose piston moves from point A to point B. Suppose piston move in the downward direction, na? So gas is compressed, na? Gas is compressed. What is changing? Pressure is changing, na? Volume is changing, and now the work is done on the gas, na? And there is no way to exchange gas from the to exchange heat from the surrounding. So work is being done on the gas, work is happening on the gas, hence internal energy of the gas will increase, and this will leads to increase in the temperature. Okay, temperature will increase here. So in adiabatic process, if piston is moving in the downward direction, है ना, piston is moving in the downward direction, volume is changing, pressure is changing, and because the work is being done on the gas, this will increase the internal energy of the gas particles, and hence the temperature of the system will also increase. So this type of process is known as adiabatic process. So what are the conditions for adiabatic process to take place? First is that the walls of the cylinder should be adiabatic wall. There should be no exchange of heat from the surrounding with the gases. Okay, another is there should be sudden expansion and compression of the gas. Okay, there should be sudden expansion and expansion of the gas. For example, gas is expanding, so gas is doing the work, its internal energy will decrease, so hence while expanding in this adiabatic process, temperature of the system or gas particle will decrease. So walls of the cylinder should be adiabatic walls, and there should be sudden expansion and compression of the गैस पार्टिकल्स. ठीक है, सडन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन होना चाहिए गैस पार्टिकल्स का. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चीज़ें चेंज हो रही है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो उनकी एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल के लिए क्या इक्वेशन है हमारे पास? आइसोथर्मल के लिए दैट पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज द रिलेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, ऐसे ही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में क्या रिलेशन रहता है इन दी एडियाबैटिक प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कोई भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा अप्लाई होगा ही. क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? दैट डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी. ये कहाँ से आई इक्वेशन? फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, चलो अब बिकॉज द प्रोसेस हैपनिंग हेयर इज एडियाबैटिक, सो एडियाबैटिक प्रोसेस में डी क्यू is 0 because no exchange of heat can takes place. dq is 0 equals to du plus pdv. ठीक है,
डी क्यू इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, डी यू प्लस पी डी वी। ना डी यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो डी यू को पुट कर देते हैं सी वी डी टी। ठीक है, कितनी हीट इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, सी वी डी टी। ठीक है, कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पे, सी वी डी टी। ठीक है, एंड हमारे पास डी यू की जगह क्या पुट कर दिया हमने, सी वी डी टी। इतनी अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इसमें चेंज हो रही है। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ठीक है, सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ठीक है, 0 इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। मेक दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो वी हैव दिस relation for ideal gas for 1 mole of a gas that PV equals to nRT, बट नंबर ऑफ मोल्स ले लो 1 यहाँ पे, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर। सही है, तो अब देखो डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसमें। देखो क्या क्या चीज़ वेरी कर रही है, सब वेरिएबल है ना यहाँ पे। तो एक बार P कांस्टेंट रहेगा, dV प्लस V कांस्टेंट रहा, dP इज इक्वल्स टू R कांस्टेंट dt। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल है, पी वी टी तीनों वेरिएबल है। तो कैसे करेंगे, हमारा डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है कि अगर दो टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनका डिफ्रेंशिएशन रूल क्या कहता है कि फर्स्ट को एज इट इज रखो, डिफ्रेंशिएशन किसका आएगा, सेकेंड टर्म का डी फिर प्लस में सिंबल आएगा, सेकेंड टर्म एज इट इज रखी वी, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, डी पी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, आर डी टी। चलो अब यहाँ से ना हम डी टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी टी फ्रॉम हियर, पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। मेक दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। कुछ नहीं किया अभी तक, एडियाबैटिक प्रोसेस हमने कंसीडर की, उस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दिया। बिकॉज दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, there will be no exchange of heat, means no change of dq will be 0, so 0 du plus p dv. So what is the value of du here, from here du is equals to cv dt, du cv dt p dv. सही है, चलो now for if the gas contained in this cylinder is ideal gas, then what we have this relation na, pv equals to rt. So differentiate both sides. So PVT all are variable in the case of adiabatic process. तो डिफ्रेंशिएशन का रूल लगाया हमने और dt की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब हमारे पास dt की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब ये dt की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। सो पुट 3 इन 2 है ना, 0 इक्वल्स टू सी वी डी टी है ना, तो dt की जगह क्या आ जाएगा, सी वी डी टी की जगह क्या आ जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, सी वी बाय में आर, सी वी डी टी कितना आ गया, पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाय आर। सही है, प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में पी डी वी। सही है, पी डी वी। ठीक है, कुछ नहीं करना, अभी इसको क्या करेंगे हम, इसको कर दो आप लोग सोल्व मैथमेटिकली जितना आपसे हो सकता है। ठीक है, ये एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आर मल्टीप्लाई में पूरे के अपॉन में आर हो गया, और आर इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो अब डीवी वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, और ये देखो 0 इक्वल्स टू क्या बचा, सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी वी सी वी डी पी प्लस आर डी वी। ठीक, चलो उसके बाद देखो क्या कॉमन ले लें यहाँ पर, अब हम कुछ देखो एक बार दोबारा से, पी सी वी डी वी है ना, प्लस में क्या आ गया यहाँ पे, सी वी इंटू वी डी पी, प्लस में क्या आ गया हमारे पास, आर डी वी। एक बार यहाँ से देखो, इसमें हमने पुट किया था ना डी टी की वैल्यू, तो देखो 0 0 सी वी डी टी की वैल्यू पुट की, पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाय आर था। ठीक है, अब यहाँ पे पी डी वी है, तो यहाँ पे एक हमारा पी रह गया, वो ऐड कर दो, पी डी वी है हमारे पास। सही है, चलो सी वी पी डी वी
वी सी वी डी पी, तो ये कितना आया पी आर डी वी। सही है, क्या आ गया हमारा पी आर डी वी। चलो पी डी वी यहाँ भी है, पी डी वी यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 0 इक्वल्स टू पी डी वी कॉमन ले लेते हैं, पी डी वी पी डी वी। सो पी डी वी इज कॉमन फ्रॉम हेयर, सो सी वी प्लस आर ये हमारे पास रह जाएगा। सही है, चलो प्लस वी सी वी डी पी। ठीक है, अब वी नो दिस रिलेशन ना, दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, है ना। तो सी वी प्लस आर क्या हो जाएगा यहाँ से सी पी के इक्वल, तो 0 इक्वल्स टू पी डी वी। सी वी प्लस आर को लिख देंगे हम सी पी। सही है, प्लस ये क्या था हमारे पास वी सी वी डी पी। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास वी सी वी डी पी। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दो, किससे, सी वी पी वी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो किससे डिवाइड करना है, सी वी पी वी से। पी सी पी डी वी प्लस वी सी वी डी पी। ठीक है, अब डिवाइड करना है किससे, हमें डिवाइड कर दो सी वी पी वी से। सो सी वी पी वी, और ये भी क्या आ गया सी वी पी वी। ठीक है, चलो तो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो पी से हमारा पी कैंसिल आउट हो गया, और तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ कैंसिल। वी से वी कैंसिल आउट हो गया, है ना, और सी वी से सी वी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। ठीक है, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 0 इक्वल्स टू सी पी बाय सी वी इंटू वी। ठीक है, सी पी बाय सी वी इंटू वी डी वी, प्लस में यहाँ क्या रह गया डी पी बाय पी। ठीक है, सी पी बाय सी वी को क्या लिख देंगे हम, गामा। सी पी बाय सी वी को क्या लिख देंगे, गामा। तो डी वी बाय वी इंटू में क्या आ जाएगा, ये हमारा गामा। यहाँ से देखो वैल्यू पुट की है इसमें, बस अभी इसको मैथमेटिकली सोल्व किया और एक स्टेप किया था हमने, दैट सी वी प्लस आर इज इक्वल्स टू सी पी। हाँ, और एक टर्म और की थी हमने कि डिवाइड कर सकते हैं ना बहुत सही, तो 0 डिवाइडेड बाय सी वी पी वी, और इन टर्म के भी डिवाइड में, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0 ही रहेगा, सी वी पी वी। सही है, चलो पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद सी पी बाय सी वी। सी पी बाय सी वी को क्या लिख दिया हमने, गामा। ये हमें पता है दैट सी पी बाय सी वी रेशियो इज इक्वल्स टू गामा। हेयर इज डी वी बाई वी प्लस डी पी बाई पी। चलो सो हमारे पास ये था 0 इक्वल्स टू गामा डी वी बाई वी प्लस डी पी बाई पी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। चलो अब इसका ना इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। ठीक है, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 0 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे समथिंग कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन इसका भी और इसका भी हो जाएगा, तो गामा तो कांस्टेंट है, टर्म बाहर रहेगी इंटीग्रेशन से। सही है, तो चलो अब डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लो डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log बेस ई वी प्लस डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log बेस ई पी। सही है, तो ये कांस्टेंट की है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log बेस ई वी। ठीक है, गामा log बेस ई वी प्लस log ई पी इज इक्वल्स टू सी। चलो अब ये देखो हमारे पास गामा है, इसको हम किधर लिख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log बेस ई वी रेज टू द पावर गामा, रेज टू द पावर गामा, है ना। ये पता है हमें रूल लॉगरिथम का कि गामा कहाँ आ जाता है आगे मल्टीप्लिकेशन में। सो log बेस ई पी, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, log m प्लस log n, है ना। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ c इक्वल्स टू log बेस ई v raised to the power यस से log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इंटू log n, तो log बेस e p इंटू v रेज टू द पावर गामा, यही बचा ना। c इज इक्वल्स टू log बेस e p v रेज टू द पावर गामा, तो टेक एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e रेज टू द पावर क्या आ जाएगा हमारे पास c विच इज अगेन अ कांस्टेंट, तो e रेज टू द पावर log बेस e
पी वी गामा, तो ई और लॉगरिथम कैंसिल आउट हो गए. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ पी वी इक्वल्स टू पी वी रेज टू द पावर गामा, और ये कांस्टेंट है ना, तो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो थर्मोडायनेमिकल रिलेशन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, पी वी रेज टू द पावर गामा. ठीक है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जैसे आइसोथर्मल के लिए क्या था रिलेशन हमारे पास, दैट पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना. एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या आ गया, पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट. ठीक है, इसी तरह से इसको हम डिफरेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है हमें. ये हमारे पास इक्वेशन है वी पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, बिकॉज हमने कैसी गैस कंसीडर कर रखी है, आइडियल गैस कंसीडर कर रखी है. तो v की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, आर टी बाई पी पुट कर देते हैं. तो v की वैल्यू आर टी बाई पी पुट कर दिया, आर टी बाई पी पूरे की पावर क्या आ जाएगी, गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है. ठीक है, जैसे न्यू फॉर्मूला बनाना है ना हमें, पी वी रेज टू द पावर गामा आ गया हमारे पास, इसी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी कितना पुट कर दिया, आर टी बाई पी. तो देखो p की पावर 1, p की पावर गामा, और ऊपर जाके क्या आ जाएगी माइनस गामा, तो 1 माइनस गामा. ठीक है, और आर हमारा दूसरी तरफ जाके अगेन ये कांस्टेंट है, तो t की पावर गामा. तो ये एक अनदर फॉर्म आ जाएगी. ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी, तो आप देख लेना और कैसे इंटर कन्वर्जन हो सकती है. ऐसे ही करना होगा, एक वैल्यू निकाली दूसरे में पुट कर दी. ठीक है, तो पी वी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या p रेज टू द पावर 1 माइनस गामा, t रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. नेक्स्ट we will discuss about the work done during adiabatic process. So let's discuss about the work done during adiabatic process. तो अगेन सपोज हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, सिलेंडर ले लिया हमने. ठीक है, तो नाउ दिस गैस इज एक्सपेंडिंग. अगेन इसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए, एडियाबैटिक में प्रोसेस करनी है तो वॉल्स भी एडियाबैटिक होनी चाहिए. उसमें सपोज गैस फिल्ड है, तो इनिशियल स्टेट ए थी और फाइनल ये किस पे पहुंच गया, बी पे पहुंच गया, ए टू बी. ऐसे गैस क्या कर रही है यहाँ पर, एक्सपेंड कर रही है. तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कितना था, P1 V1 T1, फाइनल कितना है P2 V2 T2. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग दी एडियाबैटिक प्रोसेस. ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस क्या आएगा, वॉल्यूम सपोज चेंज हो रहा है V1 to V2 PdV. वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV, एक्सपेंशन हो रही है. ठीक है, उसके बाद देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, दैट पी वी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू अ कांस्टेंट. पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट. सही है. चलो उसके बाद देखो इस रिलेशन से p की वैल्यू निकाल लो. कांस्टेंट k ले लेते हैं हम सपोज. तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी बताओ, k v रेज टू द पावर माइनस गामा ना, v डिनोमिनेटर में गया और गामा न्यूमरेटर में चला जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो चलो p इज, अब ये फर्स्ट में सेकंड p की वैल्यू पुट कर देते हैं, सेकंड से उठा के फर्स्ट में रख दो. दैट वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी V1 to V2. एंड p की जगह क्या लिख दें, k v माइनस गामा इंटू में dv. चलो अब क्या है हमारे पास, k कांस्टेंट को बाहर ले लो और इसको इंटीग्रेट कर दो. तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, इंटीग्रेशन किसका होगा, v रेज टू द पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन होगा. तो इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, तो v रेज टू द पावर माइनस गामा में +1, और जो बनेगा उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. एंड देन लिमिट्स पुट कर दो भैया, V1 to V2. सो ये गामा है, दिस इज द गामा, एंड ये v है हमारा. ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू k v की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, ये 1 माइनस गामा तो बाहर ले लेते हैं. ठीक है, v की टर्म यही है, इसी में वैल्यू पुट होगी. चलो तो v की जगह पहले क्या लिख दें, V2 माइनस गामा +1 को मैं 1 माइनस गामा लिख देती हूँ. ठीक है, माइनस V1 1 माइनस गामा. सही है. तो वन ऑफ द फॉर्म
for a work done during adiabatic process is 1 by gamma minus 1. ठीक है, v2 raised to the power, हाँ माइनस के कांस्टेंट था हमारा v और 1 माइनस गामा. ठीक है, चलो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या आ गया, वर्क डन. अब इसी को ही हम अनदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. यस, अदर फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो. मेक दिस इक्वेशन नंबर 3 सपोज. ठीक है, चलो अब हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पी वी रेज टू द पावर गामा इज ए कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा विच इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, है ना. P1 V1 गामा which is equals to P2 V2 gamma which is equals to a constant. सही है, चलो अब हम क्या करेंगे, K की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखो, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, K अंदर ले लेते हैं. अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, गामा माइनस 1, और वो माइनस अंदर ले जाते हैं. क्या किया हमने, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन गया, गामा माइनस 1. 1 माइनस गामा लिखा हुआ था ना, 1 माइनस गामा, तो क्या ले गए, माइनस गामा माइनस 1. अब ये माइनस को अंदर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का. तो क्या हुआ, एक तो के को अंदर के ले जाओ, के दोनों से मल्टीपल में आ जाएगा ना. के V1 1 माइनस गामा माइनस के V2 1 माइनस गामा. अब इसमें मैथमेटिकल है थोड़ा सा तो डेरिवेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, सो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वॉल्स शुड बी एडियाबैटिक एंड देयर शुड बी सडन एक्सपेंशन. जैसे इस केस में हमने एक्सपेंशन ले लिया, इसी को आप कंप्रेशन से भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो सडन एक्सपेंशन एंड सडन कंप्रेशन होना चाहिए. चलो अब के की जगह क्या पुट कर दें, P1 V1 गामा और P2 V2 गामा. तो जहाँ 1 है वहाँ 1 वाली टर्म्स पुट कर दो, जहाँ 2 है वहाँ 2 वाली. तो द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज 1 बाई गामा माइनस 1. के की जगह क्या लिखूँ, P1 V1 गामा V1 1 माइनस गामा माइनस के की जगह 2 वाली टर्म क्या लिखेंगे, P2 V2 गामा V2 1 माइनस गामा. चलो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस 1 बाई गामा माइनस 1. अब देखो ये बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो P1 V1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, तो ये गामा गामा तो कैंसिल आउट हो गया, तो P1 V1 बचा. सिमिलरली V2 बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा से गामा कैंसिल आउट, तो V2 V2. तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज 1 बाई गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2. ठीक है, सो दिस इज द अनदर फॉर्म फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, so that was all for adiabatic process. Next we will discuss about the second law of thermodynamics. So let's discuss about the second law of thermodynamics. So second law of thermodynamics कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी बेस्ड है. ठीक है, और दो साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी थी. फर्स्ट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड अदर इज क्लॉसियस स्टेटमेंट. तो जो बात क्लॉसियस बोल रहा है उसी को अदर लैंग्वेज में केल्विन प्लैंक बोल रहे हैं, और जो बात केल्विन प्लैंक बोल रहे हैं उसी को अदर लैंग्वेज में क्लॉसियस बोल रहे हैं. ठीक है, तो कभी मैथमेटिकल इसका फॉर्मुलेशन स्टेटमेंट में नहीं है. ठीक है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो हमारे जैसे जितने भी ऑटोमोबाइल्स के इंजन है वो सब थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है. ठीक है, रेफ्रिजरेटर है उसकी वर्किंग थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है. जो एसी कूल करते हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर्स, वो भी किस पे बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है. ठीक है, तो कोई भी आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल ऐसा नहीं होता जिसमें से जिनको बोलते हैं हम फ्यूल गैसेज है जो बाहर ना निकले. ठीक है, मतलब जितना भी डीजल बर्न कर रहा है या पेट्रोल बर्न कर रहा है वो सारा का सारा व्हीकल को चलाने में नहीं चला जाता. ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करते ही करते हैं. ठीक है, तो केल्विन प्लैंक यही बोलते हैं कि ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बन सकता जो सारी की सारी जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर दे. ठीक है, मतलब वर्क डन में कन्वर्ट होगी, पार्शियल थोड़ी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी और
थोड़ी एनर्जी एनवायरनमेंट में भी जाएगी ही जाएगी, ठीक है। मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन ऐसे इंजन नहीं बना सकता जो ज़ीरो फ्यूल या ज़ीरो हार्मफुल गैसेस एमिट करे, ठीक है। जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनसे गैसेस निकलती है ना, बाहर पॉल्यूटेड गैसेस निकलती हैं, ठीक है। तो बिना गैस एमिट किए कोई भी हीट इंजन वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं कि it is impossible to construct an engine which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work done। ये कह रहे कि it is impossible to construct an engine, कोई भी ऐसा इंजन हम नहीं बना सकते हैं जो सिर्फ ये काम करे कि हीट एब्जॉर्ब करे और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर दे। यानी जितनी हीट एब्जॉर्ब की है ना, तो सारी की सारी किस में कन्वर्ट कर दे, यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर दे। हमेशा हर एक हीट इंजन क्या करता है, कुछ भी अमाउंट, थोड़ा कुछ हीट इंजन कम अमाउंट ऑफ फ्यूल एमिट करते हैं, ठीक है, या हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं या पोल्यूटेड गैसेस एमिट करते हैं, ठीक है। कुछ जो इंजन है वो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, सही है। तो बिना एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस रिलीज़ किए कोई भी हीट इंजन वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। रिजर्वियर देखो क्या हुआ कि जब हीट सपोज कोई बाइक का इंजन है वो वर्क कर रहे हैं, तो फ्यूल क्या करता है, बर्न करता है इनिशियली, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वहाँ से के फ्यूल के बर्न करने से हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी ऑटोमोबाइल को चलाने में नहीं जाएगी, ठीक है। तो जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उसमें से कुछ यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल को चलाने में चली जाएगी, ठीक है, व्हील्स को मूव करने में चली जाएगी। तो बाकी की जो एनर्जी है ना, जो उसने डीजल या पेट्रोल से ली है, वो कहाँ रिलीज़ होगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो नेचर में हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ किए बिना हीट इंजन चला सके, ठीक है। क्लोसियस स्टेटमेंट देखो, क्लोसियस स्टेटमेंट भी कहते हैं कि कोई भी ऐसी इंजन या मशीन नहीं बन सकती जो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट अपने आप ट्रांसफ़र करे, ठीक है। अगर कोल्ड से हॉट में हीट ट्रांसफ़र करनी है तो एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अनएडेड मतलब उसको बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के कोई भी ऐसी मशीन नहीं होगी जो कोल्ड से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करे, ठीक है। तो जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, फूड आइटम्स जो नॉर्मल टेम्परेचर हैं पे हैं, ठीक है, उनसे हीट एक्सट्रैक्ट करके एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो उसमें कंप्रेशर की हेल्प लेनी पड़ती है जो फूड आइटम से हीट एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग में रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो हमेशा इसके कहने का मतलब क्या है, हीट का फ्लो कैसा होगा, हमेशा हाई से कोल्ड में तो अपने आप हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे चाय का कप है, वो जैसे गर्मियों में हमने रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। सर्दियों में जल्दी ठंडा हो जाता है बल्कि। तो कोई भी चीज़ जैसे चाय का कप, ये नहीं है कि जो चाय का कप ठंडा हो गया वो अपने आप गर्म हो जाए, उसको गर्म करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो गर्म से ठंडा करने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प नहीं चाहिए, बट ठंडे से गर्म पे जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प चाहिए होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट किसकी हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सो इन दिस वे आर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।